بنیادی تجزیے کا استعمال اور خبروں سے کمائی کا طریقہ۔ فوریکس بیسک کورس کے 8ویں سبق میں خوش آمدید۔ اس سبق میں آپ سیکھیں گے ٹریڈر کے لیے خبروں کی 4 اہم ترین اقسام۔ جب اہم خبریں آئیں تو فوریکس میں کیا ہوتا ہے؟ نیوز ٹریڈنگ کے لیے عام طور پر کون سی 3 حکمت عملیاں استعمال ہوتی ہیں؟ نیوز ٹریڈنگ کے کیا نقصانات ہیں؟ خبروں کی 4 سب سے اہم اقسام۔ روزانہ دنیا بھر میں 20 کے قریب اہم معاشی خبروں کے اعلانات ہوتے ہیں۔ بڑے قومی بینکوں کی قراردادیں، معروف مقررین کی رپورٹیں اور تقاریر، مختلف معاشی اشاریوں میں تبدیلیاں، یہ سب مارکیٹ اور بعد میں آپ کی ٹریڈنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ہر ملک میں صرف 4 قسم کی خبروں کا ہی مارکیٹ پر سب سے نمایاں اثر پڑتا ہے: بے روزگاری کی شرح، NFP، افراط زر کی شرح، CPI، GDP کی شرح، FED شرح سود۔ امریکہ سے آنے والی خبریں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں کیونکہ کرنسی کے بڑے پیئرز میں امریکی ڈالر شامل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مختلف قسم کی خبروں کے تجزیے کے لیے ہم امریکہ ہی کی مثال پیش کریں گے۔ نان فارم پے رولز، NFP۔ نان فارم پے رولز رپورٹ یعنی NFP ماہانہ ہر پہلے جمعے کو منظر عام پر آتی ہے۔ NFP بیان کرتا ہے کہ امریکہ میں ملازمتوں اور بے روزگاری کی شرح میں کیسے تبدیلی آئی ہے۔ جب NFP نیچے جاتا ہے تو امریکی ڈالر کی شرح بھی نیچے آ جاتی ہے۔ جب NFP بڑھتا ہے تو امریکی ڈالر کی شرح بھی بڑھتی ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس، CPI۔ کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی CPI کی رپورٹ ہر ماہ کے وسط میں سامنے آتی ہے۔ CPI اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ پچھلی رپورٹ کے مقابلے میں کس طرح ملک میں زندگی گزارنے کے اخراجات میں تبدیلی آئی ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس کی رپورٹ میں ان تمام چیزوں اور خدمات کی قیمتیں شامل ہوتی ہیں جو لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں: کھانا، لباس، تعلیم کے اخراجات، صحت کی دیکھ بھال، نقل و حمل، یوٹیلیٹی، تفریح وغیرہ۔ جب CPI میں اضافہ ہوتا ہے تو امریکی ڈالر کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ جب CPI میں کمی ہوتی ہے تو امریکی ڈالر کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، GDP۔ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی GDP کی رپورٹ ہر ماہ کے آخر میں سامنے آتی ہے۔ GDP ایک ماہ کے دوران امریکی معیشت کے ذریعے تیار کردہ سامان اور خدمات کی کل مارکیٹ مالیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ GDP میں کھانے پینے کی چیزیں، دفاعی صنعت، ہوائی جہاز کی صنعت، جہاز سازی کی صنعت، سائنس، لباس اور فرنیچر پروڈکٹس، تعلیم کے اخراجات وغیرہ شامل ہیں۔ جب GDP میں اضافہ ہوتا ہے تو امریکی ڈالر کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ جب GDP میں کمی ہوتی ہے تو امریکی ڈالر کی شرح بھی نیچے آ جاتی ہے۔ GDP کی قیمت کا تخمینہ ہر ماہ کے آخر میں پیش کیا جاتا ہے اور عام طور پر اس کی درجہ بندی ایڈوانس تخمینہ، دوسرا تخمینہ اور تیسرا تخمینہ میں کی جاتی ہے۔ ایڈوانس تخمینہ جنوری کے آخر میں جاری کیا جاتا ہے، دوسرا تخمینہ فروری کے آخر میں جاری کیا جاتا ہے، تیسرا تخمینہ مارچ کے آخر میں جاری کیا جاتا ہے۔ عام طور پر GDP کا سب سے پہلا ایڈوانس تخمینہ امریکی ڈالر کی شرح پر سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ FED شرح سود، فیڈرل ریزرو انٹرسٹ ریٹ ڈیسیژن یعنی FED تقریباً ہر 1.5 ماہ میں ایک بار آتا ہے۔
ये अमरीकी बैंकों की शरह सूद और डिपॉजिट्स पर असर अंदाज होता है। आम तौर पर अमरीकी डॉलर की शरह में इजाफे के बाद शरह सूद में इजाफा होता है और इसकी शरह में कमी के बाद शरह सूद में कमी होती है। सूद की शरह में एडजस्टमेंट के बाद अमरीकी डॉलर की शरह किस तरफ जाएगी, इसका इन्हिसार अमरीकी मईशत की मजमूई हालत पर है। इसी से मुताल्लिक यूरो की शरह पर इसी तरह का असर ECB की गवर्निंग काउंसिल के जरिए रीफाइनेंसिंग टेंडर शरह की वजह से होता है और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने GBP की शरह पर ऐसा ही असर रेपो रेट पर अपनी रिपोर्टों के साथ पैदा किया। अहम खबरें आने पर फॉरेक्स में क्या होता है? जब कोई बड़ी खबर आती है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। ये आमतौर पर रिलीज के बाद चंद मिनट जारी रहता है। उस वक्त से लेकर 30 मिनट तक मार्केट इंतहाई उतार चढ़ाव का शिकार रह सकती है। एक दिन में 2 खबरें मार्केट को इसी तरह मुतासिर कर सकती हैं। फॉरेक्स में न्यूज़ ट्रेडिंग। खबर आने से पहले नज़र सानी शुदा आदाद व शुमार की साबिका कीमत और उनकी नई मुतवक्का कीमत शाया की जाती है। न्यूज़ रिलीज़ के दौरान आपको क्या करना चाहिए? यह इस बात पर मुनहसिर है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। मोहतात किस्म के ट्रेडर, खबर से पहले तमाम ट्रेड्स क्लोज कर दें। खबर के फ़ौरन बाद कोई नई ट्रेड ओपन ना करें। इंतहाई उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद दोबारा ट्रेडिंग करें, क्योंकि मार्केट मुस्तहकम हो जाती है। दूसरी किस्म के ट्रेडर तज्जियाकार, मार्केट का गहरा तकनीकी तज्जिया करें। उनकी तहकीक के मौजू की मुमकिना कदरों के बारे में कयास आराइयाँ करें जिनका हवाला खबरों में दिया गया है। मार्केट के तर्ज अमल और कीमत की नकलो हरकत से मुताल्लिक इंतहाई हकीकत पसंदाना मंजरनामे मुंतखब करें। उनके मुंतखब टैक्टिक्स के मुताबिक खबरों से पहले पेंडिंग ऑर्डर सेट करें। तीसरी किस्म के ताजिर मुअर्रिखीन, मार्केट्स और उस मुल्क पर जहाँ से खबर जारी होती है तारीखी आदाद शुमार का तज्जिया करें। हुकूमत और मरकज़ी बैंकों के सरबराह जो फैसले करते हैं उनका पैटर्न तलाश करें और उनके मुमकिनात का हिसाब लगाएं। खबर जारी होने से पहले ऑर्डर ओपन करें। मार्केट का गहरा तकनीकी तज्जिया करें। न्यूज़ ट्रेडिंग के नुकसानात। जब स्प्रेड फैलता है तो मार्केट में दाखिल होने या बाहर निकलने की लागत बढ़ जाती है। पिछले सबक में हमने आपको दिखाया था कि जब कोई अहम खबर आती है तो स्प्रेड कैसे फैलता है। ऐसा लगता है कि मनफी स्लिपिज का खतरा है। स्लिपिज से मुराद कीमत का फ़र्क है जो किसी ट्रेड की मुतवक्का कीमत और जिस कीमत पर ट्रेड सरंजाम पाती है उन दोनों के दरमियान होता है। स्लिपिज से मुराद कीमत का फ़र्क है जो किसी ट्रेड की मुतवक्का कीमत और जिस कीमत पर ट्रेड सरंजाम पाती है के दरमियान होता है। ये उस वक्त होता है जब लिक्विडिटी ना हो। स्लिपिज कई सूरतों में हो सकती है। खरीदने या फरोख्त करने का ऑर्डर ओपन करते वक्त, बाय या सेल ऑर्डर ओपन करते वक्त, मार्केट से निकलते हुए, ऑर्डर क्लोज करते वक्त, आपके सेट किए हुए पेंडिंग ऑर्डर के ओपन होते वक्त, पेंडिंग ऑर्डर के क्लोज होते वक्त। आप जिस किस्म के भी ट्रेडर हैं, आपके लिए आने वाली खबरों से आगाह रहना ज़रूरी है। ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए आप इक्तिसादी कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैलेंडर माशी खबरों के तमाम आदाद व शुमार पर मुश्तमिल होता है। खबर कितनी अहम है, ज़्यादा, दरमियानी या कम। सबसे अहम खबर के साथ 3 फिजाइया निशान होते हैं: मुल्क की करेंसी, मुख्तसर तफसील, पिछली, मुतवक्का और असल कदरें। हमने इस सबक से जो सीखा उसका खुलासा ये है कि अमेरिका से आने वाली खबरें सबसे अहम हैं, क्योंकि तमाम बुनियादी करेंसी के पेयर्स में अमरीकी डॉलर शामिल है। मार्केट को मुतासिर करने वाली इंतहाई अहम खबरें ये हैं: नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट NFP, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट CPI, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP रिपोर्ट, फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिसीजन FED। ट्रेडर्स की 3 अक़साम हैं: मोहतात, तज्जियाकार, मुअर्रिख।
खबर आने पर ट्रेडर्स ज़्यादा मोहतात रहते हैं, स्प्रेड्स फैलते हैं, स्लिपिज का इम्कान बढ़ जाता है। इक्तिसादी कैलेंडर वो ज़रिया है जिसे मुतहर्रिक ट्रेडर्स हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हमारे अगले सबक में आप सीखेंगे कि कीमत के तर्ज अमल की पेशगोई के लिए तकनीकी तज्जिया कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रेंड लाइन क्या है और इसे कैसे बनाया जा सकता है, कलीदी सतह यानी की लेवल्स कैसे तलाश की जा सकती है, चैनल का तयन करने और उसे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने का तरीका, क्लासिक चार्ट पैटर्न के इस्तेमाल के ज़रिए ट्रेडिंग कैसे की जाए,